my lecture, and I will be taking following topics. One is, first of all, I'll be taking renewal of attacks in epee fencing. After then, I'll be taking transfers of blades, and then I'll be taking some blade actions to improve finger work, coordination of arms and movements. Then I will hand over the program to Krishna Kumar ji, as Colonel Vikram Jamal has just said. And now, without wasting much of the time, I would like to start my first presentation. Okay, renewal of attacks in epee fencing. जैसा कि नाम में लिखा हुआ है रीन्यूअल, री मीन्स दोबारा, न्यूअल मीन्स नया, दोबारा से नया अटैक, रीन्यूअल अटैक्स इन epee fencing. Epee fencing, as you know, have a large number of target area, advanced targets, main targets, foot target, mask target, so many target areas are there. So once a fencer makes attack, it doesn't mean that his chance of action is over if his opponent makes a parry or withdraws backwards. It doesn't mean that his chance is over. ये नहीं है कि उसका चांस मिस हो गया, उसके पास और आगे जाने का या और एक्शंस करने का चांस है, क्योंकि मैंने आपको 3 दिन हो गए एक ही बात बताई है कि epee fencing इज नॉट अ कन्वेंशनल स्पोर्ट. इसमें कोई राइट ऑफ वे नहीं है. अगर आप दोनों का लैंप, दोनों फेंसेस का लैंप 20th पार्ट ऑफ अ सेकंड में आता है तो दोनों को ही पॉइंट मिलता है. So it is very clear that epee fencer, if he goes for advanced target and his blade is parried or his opponent withdraw from the place backwards, at that time fencer, without hesitating, can continue his offensive action, which is called renewals. Renewals are of 3 types. 3 तरह के renewals होते हैं: remise, reprise and redoublement. Remise, reprise and redoublement. Remise क्या है? It is a direct offensive action executed in the same line after an opponent's parry without prior return to on guard. क्या मतलब है कि remise एक ऐसा एक्शन है जिसमें कि जो कि फेंसर जो है उसी लाइन में करता है जिस लाइन में वो अपना मेन अटैक करता है. या तो वो पैरी हो जाता है या ओपोनेंट हेजिटेट करता है हिट करने के लिए. अगर पैरी कर लेता है तो ओपोनेंट हिट करने के लिए या रिपोज करने के लिए हेजिटेट करता है, या वो हाथ विड्रॉ कर लेता है या वहां खड़ा रहता है. उस सिचुएशन में, इन दैट सिचुएशन, फेंसर विदाउट कमिंग बैकवर्ड्स टू ऑन गार्ड पोजीशन वहीं से उसी लाइन में दोबारा हिट कर देता है. दैट इज कॉल्ड रिमीज. विदाउट चेंजिंग द लाइन इज कॉल्ड रिमीज. विदाउट कमिंग टू द ऑन गार्ड पोजीशन उसी लाइन से वो आगे हिट कर देता है. इट कॉल्ड रिमीज. Now second is redoublement. It is an offensive action, offensive or counter-offensive action executed by any other action than a straight hit in another line or the same line as that of opponent's parry without prior return to on guard. ये एक ऐसा offensive action है जो कि जब ओपोनेंट पैरी कर लेता है ब्लेड को तो या तो घुमा के उसी लाइन में हिट कर देना, डायरेक्ट नहीं. When opponent makes a circular parry, you change the line of the attack and you hit on the other line. और सिंपल पैरी करता है जब तो दूसरी लाइन में जाके हिट करना. तो ये दोनों ही ऑप्शंस हैं. बट इसमें और रिमीज में एक ही फर्क है. देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन रिमीज एंड रीडबलमेंट. दैट इज, इन रिमीज फेंसर हिट्स इन द सेम लाइन. इन रीडबलमेंट फेंसर चेंज द लाइन ऑफ अटैक. बस यही जो है, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन रिमीज एंड रीडबलमेंट. Now comes reprise. The reprise is a second offensive action executed immediately after the first and preceded by a return to on guard. ये immediate offensive action है जिसमें फेंसर वहां खड़े होके हिट नहीं करता, ऑन गार्ड पोजीशन में जाके हिट करता है. ऑन गार्ड पोजीशन में जाके दोबारा लॉन्च पोजीशन में आता है. ये 2 तरह का होता है. It is of 2 types. Preceded by returning to on guard forward, preceded by returning to on guard backwards. एक में क्या होता है, फेंसर पीछे की तरफ जाता है, बैकवर्ड्स ऑन गार्ड जाता है और लाइन चेंज करके दोबारा हिट कर देता है. दूसरे में क्या होता है, फेंसर जहां पर लॉन्च फिनिश करता है
ओपोनेंट उसका पीछे हट जाता है, वो पिछले पैर को आगे लेके आता है और कंटिन्यू करता है लॉन्च को। ये आप दोनों डेमोन्स्ट्रेशन आगे देखेंगे। आइए अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से रिमीज को करना है, हाउ टू मेक अ रिमीज एक्शन। ये रिमीज एक्शन जो आप देखने जा रहे हैं, ये मैं आपको दोनों लाइन में दिखाऊंगा, लेफ्ट ओपोनेंट एंड राइट लेफ्ट ओपोनेंट, दोनों साइड में, ताकि आपके फेंसर को इजी हो, या it is going to be easy for you to perform with your fencer. That is why I'm performing in the both sides. Just look at it. राइट हैंड ओपोनेंट की तरफ से भी और लेफ्ट हैंड ओपोनेंट की तरफ से भी करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करेंगे, फिर राइट हैंड। ये जो एक्शन मैं करवा रहा हूं, इन एक्शन में मैं कंटिन्यूसली रिमीज नहीं करवाऊंगा, मैं प्यूपल के माइंड को पहले से प्रिपेयर नहीं करूंगा। मैं 3-4 एक्शन करवाऊंगा, उसमें से एक बार पैरी करूंगा, प्यूपल फटाफट उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा। Why I am doing this? So that his brain is not responding to the stimuli immediately. It has to respond on a certain situation when the blade is parried. And this situation is not created all the time. It is created only one time out of 2-3 options. ये देखिए किस तरह से, जैसे मैंने पैरी किया, उसने लाइन नहीं चेंज की, वो आउटसाइड में था, वहीं से सीधा फ्लांक पे चला गया और मुझे हिट कर दिया, और वापस आके सिक्योर किया अपने ब्लेड को। अब राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन में, राइट कॉम्बिनेशन में ये देखिए, वहीं से फ्रॉम दैट प्लेस, ये देखिए किस तरह से इमीडिएटली जैसे पैरी हुआ, फेंसर ने हल्का सा पैर आगे बढ़ाया और साथ में मेरे अपना फ्लांक के ऊपर हिट कर दिया। दिस इज कॉल्ड रिमीज। ये है रिमीज एक्शन। मैंने जैसे पहले बताया था, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, रिमीज हैपेंस इन द सेम लाइन। व्हेन योर फाइनल अटैक इज पैरीड और इज avoided, you can continue the same attack if opponent does not go back but hesitate to make a hit. जब वो घबराता है, झिझकता है हिट करने के लिए, you can continue the hit. Now next, redoublement. redoublement करेंगे, जैसे कि आपको पता है redoublement जो है वो लाइन चेंज करके होता है, नॉन इक्वलिशनली आफ्टर द फेलियर ऑफ अटैक। अगेन आई एम टेकिंग डिफरेंट एक्शंस, ताकि आप अपने फेंसर को एक ही बार बार सिंपल डायरेक्ट हिट या डिसएंगेजमेंट हिट ही बार बार ना करवाएं। कभी डिसएंगेजमेंट फेंट डिसएंगेजमेंट हिट, कभी बीट फेंट डिसएंगेजमेंट, कभी प्रीस द फेयर हिट, मेनी एक्शन, कभी 1-2 डबल डिगेंजमेंट, एनी एक्शंस, और उसके अगेंस्ट में फेंसर को 2-3 बार करवा के सडनली एक बार पैरी कीजिए, ताकि वो रीडबलमेंट या रिमीज व्हाटएवर यू वांट, ही कैन मेक द एक्शन। ये देखिए, जैसे मैंने 6 में पैरी की, ओपोनेंट ने लाइन चेंज करके और अंदर आके मेरे इनसाइड बॉडी पर हाई लाइन पे हिट कर दिया। ये देखिए, और कोशिश यही करें कि जब फेंसर वापस आए तो वो सिक्योर होके आए। समटाइम्स ब्लेड पास हो जाता है, तो आप फेंसर को सिखा रहे होते हैं, रिमीज करते हैं, और रिमीज करके वापस आ जाता है, लेकिन बाउट में कई बार वो डिस्टेंस बड़ा हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे फेंसर ये सोचता है कि मैं पहुंच जाऊंगा, पर वो नहीं पहुंचता और पीछे हैंड पुल करके आता है। उस सिचुएशन में जो ओपोनेंट होता है वो फ्लच या लॉन्च मार देता है और यहाँ स्टेप फॉरवर्ड आके हिट कर देता है। तो बहुत जरूरी है कि जब फेंसर वापस आए तो ही सिक्योर्स हिज लाइन ऑफ बॉडी फ्रॉम वेयर द अटैक कैन कम। ये देखिए, अगेन जैसे मैंने क्वाड पैरी की, उसने फटाफट लाइन चेंज की। जरूरी नहीं है कि वो हाई लाइन में हिट करेगा। ये तो मेरे पास थाई गार्ड नहीं है, ही कैन हिट ऑन माय थाई, ही कैन हिट ऑन माय फुट, ही कैन हिट ऑन एनी पार्ट ऑफ द टारगेट अदर देन विच द फेंसर हैज ब्लॉक, जो कि द ओपोनेंट हैज ब्लॉक। ओपोनेंट ने जो टारगेट ब्लॉक किया है, उसके अलावा किसी लाइन में भी वो हिट कर सकता है। yes.
देख सकते हैं आपने, इमीडिएटली लाइन चेंज करके जैसे ही पैरी हुआ, पैरी की आवाज आते ही भी पैरी एंड हिट। बेस्ट जो रिलीज या रिडबलमेंट या रिप्रीज होता है, जैसे पैरी की आवाज आती है उसी टाइम पे हिट होना चाहिए। दिस इज द बेस्ट रिलीज और रिप्रीज और रिडबलमेंट और रिव्यू ऑफ अटैक, बेस्ट। नाउ लास्ट वन वी विल सी बैकवर्ड रिप्रीज, पीछे जाते हुए। इसमें फेंसर क्या करता है, जैसे ही उसका ब्लेड पैरी होता है, फेंसर इमीडिएटली पीछे की तरफ ऑन गार्ड में आता है और लाइन चेंज करता है और दूसरी तरफ जाके हिट कर देता है, या उसी लाइन में दोबारा हिट कर सकता है, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ही हैज टू कम बैक टू द ऑन गार्ड पोजीशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही हैज टू कम बैक टू द ऑन गार्ड पोजीशन, और उसका जो हैंड है 60% वो विड्रॉ करके लाइन चेंज करके हिट कर सकता है। आइए देखिए। सबसे लास्ट सेक्शन जो है वो है रिप्रीज। रिप्रीज में ये दो पार्ट होते हैं, बैकवर्ड रिप्रीज, फॉरवर्ड रिप्रीज। तो अभी हम बैकवर्ड रिप्रीज करें। आइए। अभी आपने देखा कि जैसे मैंने पैरी किया, फेंसर ने हल्का सा हाथ टर्न किया, बेंड किया और लाइन चेंज कर दी इमीडिएटली। जैसे ही वो ऑन गार्ड पोजीशन पे आया, उसका पैर लैंड हुआ, उसने लाइन चेंज की, चेंज करने के बाद आगे गया। एक चीज याद रखनी है, कोचेस एंश्योर करें कि जब फेंसर पीछे जाए पहले लाइन चेंज करे। फर्स्ट ही हैज टू चेंज द लाइन, देन ही हैज टू गो फॉरवर्ड। इफ ही गोज फॉरवर्ड विदाउट चेंजिंग द लाइन, हिज ब्लेड विल बी कॉट एंड his action will be failure. So ensure that when your pupil goes back, he change the line of attack, he change the line and then go for hit. First line change, then go for launch. मैंने दोनों साइड पे करवाया है, लेफ्ट हैंड में भी इसको मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, राइट हैंड फेंसर के अगेंस्ट में भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। इस why I have done this, because you must use, coaches must use both hands so that your fencer feels easy, your fencer feels comfortable when he faces left hand fencer. Otherwise I have seen many of the fencers they complain, sir wo lefty hai, mere se khela nahi jayega. Why he or she is lefty and you cannot play? He or she is lefty, that doesn't mean you are going to lose the bout. आपका हर बाउट इंपॉर्टेंट है, तभी तो फाइनल में आप अगर 8 फेंसर्स का जो क्वार्टर फाइनल देखोगे, उसमें से 4 या 5 लेफ्टीज होते हैं। क्यों? बिकॉज यू डू नॉट रेगुलरली फेंस विद देम और योर कोच डज नॉट गिव लेसन विद द बोथ हैंड्स। इफ अगर आपका कोच लेसन देगा दोनों हाथ से, यू विल नॉट फेस प्रॉब्लम। देखिए So, आपने क्लियरली इसमें देखा कि फेंसर पीछे की तरफ गया, ऑन गार्ड हुआ, लाइन चेंज की, 60 लगभग अप्रोक्सीमेटली 80 to 60% हैंड विड्रॉ किया, चेंज द लाइन एंड कंटिन्यू द हिट। तो दिस वाज बैकवर्ड रिप्रीज। नाउ कम्स फॉरवर्ड रिप्रीज। फॉरवर्ड रिप्रीज में जो मैंने आपको, जैसे आई हैव ऑलरेडी अर्लियर मेंशन्ड यू, फ्रॉम लॉन्च पोजीशन व्हेन हिज अटैक इज फेलियर, फॉरवर्ड रिप्रीज आप तभी कर सकते हैं when your opponent goes back either by making parry or withdrawing from the attack, line of attack. withdraw मतलब करना, पीछे हट जाना। पैरी मतलब पैरी करते हुए पीछे चले जाना या पैरी करके पीछे चले जाना। जब वो डिस्टेंस बढ़ जाता है then only you can make forward reprise. Otherwise backward reprise से भी काम चल सकता है, रिमीज से भी चल सकता है और रिडबलमेंट से भी चल सकता है। Forward reprise can only be made when your opponent goes back either making parry or just goes out of distance. Now see. इसमें जो ओपोनेंट है वो पैरी करता हुआ पीछे जाता है या बिना पैरी किए पीछे चले जाता है, तो फेंसर जो है वो फॉरवर्ड ऑन गार्ड रिकवर करता है, वहां से फिर दोबारा बाउंस मारता है, लाइन चेंज करे या डायरेक्ट, दोनों में ही मार सकता है। तो उस सिचुएशन में दिक्कत हो जाएगी। देखिए कितनी स्पीड से, जैसे ब्लेड पैरी हुआ, पिछला पैर आगे आया, आगे आने के बाद उसने एक स्टैंप मारा जमीन पे, उस स्टैंप से फोर्स लिया, फोर्स लेके आगे वाले पैर से अपने ऑटोमेटिकली लॉन्च की स्पीड बढ़ गई।
the speed was increased. Again, you just see, I'll repeat this slide again. अब हम फॉरवर्ड रिपीट करेंगे। इसमें जो ओपोनेंट है वो पैरी करता हुआ पीछे जाता है या बिना पैरी किए पीछे चले जाता है, तो कैंसर जो है वो फॉरवर्ड ऑन गार्ड रिकवर करता है, वहां से दोबारा मारता है, लाइन चेंज करें या डायरेक्ट, दोनों में ही मार सकता है। तो उस सिचुएशन में एक पैरी हो जाएगी। अब सभी जो है पैरी के बाद जब प्यूपल लॉन्च में से रिकवर करता है फॉरवर्ड और एक स्टैंप मारता है ग्राउंड पे, उस स्टैंप को जरा ध्यान से देखना, पैर को। जस्ट लुक एट हिज फीट। आपने देखा कैसे स्पीड बढ़ गई, ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज हो गई। दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ हिज फ्रंट फुट, दिस इज बिकॉज ही हैज टेकन फोर्स फ्रॉम द रेयर फुट। अपने पिछले पैर से उसने फोर्स ली और पिछले पैर से फोर्स लेके इमीडिएटली ही हैज परफॉर्म द नेक्स्ट एक्शन। So you can teach these type of footworks to your pupil कि किस तरह से जमीन के ऊपर आप फोर्स लेकर और लॉन्च मार सकते हैं, या स्टेप फॉरवर्ड में किस तरह से फोर्स लेकर आप स्टेप फॉरवर्ड लॉन्च मार सकते हैं। So you must add these kind of footworks in your daily routine. But ensure जब आप घर पे हैं इस तरह से, when you are at home, the surface is hard, so avoid big launches, avoid hard launches, avoid these kind of hard footwork. If you really want to do, अपने पैरों के, अपने शूज के अंदर जो वो हम पतावे बोलते हैं ना उसको, सोल्स, उसका जो साइज है वो इंक्रीज कर दो, तो आप लॉन्च मारेंगे तो आपके हील में पेन नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल हील से मारेंगे लॉन्च तो वो पेन होना शुरू हो जाएगा 2-3 दिन के बाद। सो यू मस्ट एंश्योर, अगर ये पेन होना शुरू हो जाता है, देन ऑल्सो देयर इज अ ट्रीटमेंट, आइसिंग कीजिए 2-3 दफा दिन में, 3-4 दफा दिन में, वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा। एंड अवॉइड मेकिंग हार्ड लॉन्चेस। नाउ नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड इज ट्रांसफर्स ऑफ ब्लेड। अब ट्रांसफर्स ऑफ ब्लेड क्या है, वाई वी गो फॉर ट्रांसफर्स ऑफ ब्लेड, क्यों जरूरत पड़ रही है ट्रांसफर्स की। Transfers are the blade actions made from one line to another line along with opponent's blade. Opponent के blade के साथ एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने को ट्रांसफर्स ऑफ ब्लेड बोलते हैं। अब ये ट्रांसफर क्यों करते हैं, कब करते हैं, इसकी क्या नेसेसिटी है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ दिस ट्रांसफर, व्हाई वी डू ट्रांसफर। वी डू ट्रांसफर टू फिक्स आवर हैंड इन एपे फेंसिंग, अपने हाथ को फिक्स करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी मूवमेंट ब्लेड के साथ करते हैं, अगर हम उसको ट्रांसफर में पहले प्रैक्टिस करेंगे तो विल फिक्स द हैंड, अपने हाथ को फिक्स कर देंगे। जैसे आई हैव ऑलरेडी क्लासिफाइड इन दिस पर्टिकुलर ड्रिल इज क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, सर्कुलर ट्रांसफर, डायगोनल ट्रांसफर। सर्कुलर मतलब आप ब्लेड पकड़ते हो ओपोनेंट का, सर्कल में घुमाते हैं वापस और चेक करते हैं कि वो पॉइंट बाहर है कि अंदर है, फिर दोबारा घुमाते हैं, फिर दोबारा घुमाते हैं, 2 या 3 बार रेपिटेशन करते हैं। ये एक्शन बेसिक एक्शन है। इट इज वेरी गुड एक्शन टू टीच किड्स, टू टीच चिल्ड्रन हाउ टू फील द ब्लेड व्हेन यू आर मूविंग इट आउट ऑफ योर बॉडी, हाउ टू फील द ब्लेड। प्यूपल को रोक रोक के दिखाइए, 6 अगेन सर्कुलर 6, अगेन सर्कुलर 6, फिर 17, अगेन सर्कुलर 17, अगेन सर्कुलर 17, 6, अगेन सर्कुलर। ये जो है आपकी चारों लाइन को एक ब्लॉक बना देगा और प्यूपल का जो प्रोटेक्शन एरिया है वो स्ट्रांग हो जाएगा। इससे क्या होता है, when you make these actions, these type of actions during your footwork, after your footwork training, you can make this for 10 to 15 minutes. These action will help you to fix your hands, fix your hand positions for the sake of parries or for the sake of taking off the blades, blade पकड़ने के लिए। Now we come to the transfer. बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्शन कर जा रहे हैं, तो ट्रांसफर जो है वो फिटनेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ट्रांसफर दो डायरेक्शन में, सर्कुलर ट्रांसफर एंड डायरेक्ट ट्रांसफर। ब्लेड को अपने ब्लेड को लेते हुए सर्कुलर मूवमेंट करते हैं और उसके साथ साथ हम डायगोनल मूवमेंट करते हैं और फिर बार सर्कुलर मूवमेंट करते हैं। ये एप्लीकेशन बार बार करते हैं और ये बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा एक्शन है।
ये देखिए किस तरह से सर्कुलर मूवमेंट से ब्लेड किया, ब्रेक करे, प्यूपल को बोले चेक करे उसका पॉइंट बाहर है, देन अगेन यू कैन कंटिन्यू, एंड देन सेप्टिम. You see, he is fixing his hands in two movements, circular and diagonal, circular and diagonal, circular and diagonal. See, this cannot be done only in circular six and septim, circular septim movements. This can be done in octave and squat also. As I have mentioned you कि ये जो particular actions हैं, these actions are very good for the beginners, even for seniors also. Preparatory phase में जब PP1 होता है, preparatory phase 1, जब आपको weapon ज्यादा use नहीं करना होता है, लेकिन finger work use ज्यादा करवानी होती है, तो this is the best action, this is the best thing you can do start with. और बाकी action भी मैं आपको दिखा रहा हूँ. Those are also very good actions when you start your warm up, fitness warm up. उसके बाद when you start footwork, when you complete your footwork, and then you go for target exercise. After that, after target exercise, you can do some partner exercise like this. And next slides also. Like this. Now, next slide is beating action on the blade. Beating action जो है, these are actions which make your hand moving from one high line to same low line by beating the blade, either 6 octave or quad septim. Same size, 6 octave, quad, beat, 6 octave. This is to strengthen your forearm, your fingers, and improve your finger work also. जैसा कि कल जामवाल ने पूछा था मेरे से क्वेश्चन के आर देयर एक्सरसाइजेस टू इंप्रूव फिंगर वर्क, रिस्ट strength and coordination, footwork. These are the best exercises you can do. Now see how these fencers are performing this exercise. मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये जो सेंटर है, ये this center is Saint Mark Fencing Club, fencing training center. This is not a club. It is not a club. ये क्लब नहीं है, ये fencing training center है, Saint Mark Fencing Training Center, और ये फ्रांस में पेरिस में है. See, इसमें जो फेंसर है आपको सेकंड नंबर पे नेटली नजर आ रही है, उदयवीर है साथ में, और लास्ट में सारा बेस्कस है जो कि वर्ल्ड नंबर 1 थी. लियो है, इसमें अपनी 6 लड़कियां हैं, इना, सीरत, ज्योतिका, तनिक्षा, शीतल, कविता, ऑल आर देयर, दे आर परफॉर्मिंग दीज एक्शन. और कनाडा की पूरी टीम है और बहुत 2-3 कंट्रीज की टीम्स भी हैं. वो लास्ट में सारा बस्टर्स है, सारा बस्टर्स. You can see fencers moving octave 6, octave 6 beating actions. Then you can perform this action quad septim also. Now quad septim also. You see Uday and Natalie both are moving. So these kind of movements are very good, but they should be done in a proper time. Time कब होता है? When you finish your warm up, उसके बाद आप footwork करते हैं, उसके बाद go for some finger work target exercises. Then with the partner, no need of mask, only you need weapon and glove, and you can perform these actions. Now अब अगला action है double quad and 6 beat. 2 times quad, 2 times 6, 2 times quad, 2 times 6 is very good sound. You can feel the sound, very good beat. Now see how to perform. This is two quad beats, 2 beats of quad. You can see Master Daniel, you can see George in the black t-shirt.
He is assistant coach of the training center, और and you can see the full-fledged team. और उतने फैंसर इधर भी ट्रेनिंग कर रहे हैं पीछे की तरफ भी. ये लियो है जो बेस पे हाथ करके खड़ी है. She is from Canada. You can do these actions while moving also. सिर्फ standing में ही नहीं. You can move forward, you can move backward. ये actions आप perform कर सकते हैं forward backward movement करके भी. Now जो next section मैं आपको दिखा रहा हूं, this is octave movement. इसमें क्या होता है कि एक फेंसर दूसरे का ब्लेड ऑक्टेव में पकड़ता है और जो दूसरा फेंसर है वो ब्लेड निकाल लेता है एंड दोबारा फिर वो फेंसर पकड़ लेता है उसको. दोबारा फिर इस तरह से ये मूवमेंट होती है. इट इज वेरी गुड मूवमेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर आर्म एंड टू टेक द ब्लेड अवे फ्रॉम द टारगेट एंड टू कंट्रोल द ओपोनेंट्स ब्लेड. Thank you very much. My today's this is over presentation, and I am very thankful to Fencing Association of India, especially President हमारे जो हैं श्री राजीव मेहता जी, सेक्रेटरी जनरल बशीर अहमद खान और ट्रेजरर दुधारे सर और पूरी फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पूरे मेंबर्स, सबका मैं धन्यवाद करता हूं. मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे जो डीजी साइड संदीप प्रधान सर हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं. सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई एम थैंकफुल टू हिम आल्सो. मेरे कमांडेंट एएसआई के राकेश यादव सर, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम. आई एम आल्सो थैंकफुल टू माय ओआईसी फेंसिंग sitting there in the cap, or Vikram Jambal. Thank you very much. Thank you. Thanks a lot. One and all. Sir, thank you, sir. Thank you very much. It is always good to listen to you, and if you get a praise from a senior of your caliber, then it makes my day. Thank you very much. You did a complete justice to it. Before we go to the show, Bhai Sahab will not have question answer session because he has got some commitment at 11 at Sports Authority of India. So there is some we have got a guest from Holland. Krishanji, if you can, her name is Jent Wien. Jent Wien is there. If you can check it. If you can, we'll just give her 2 minutes because she has logged in from. What is her name, sir? WWN, ma'am. She is a veteran World Championship medalist. I can't find her. Maybe she is And logging if you with are some there, if you can file. raise hand, please, on the Zoom. Not there? Ma'am, you are there? If you can raise hand, I'll be able to see you. Not there? If you see, not able to find. I'm not able to find her. Just a minute, I think I could find her. YENT name is there. She
He wanted to say she's logged on since long. Why NET name? No, sir. Maybe with the Okay. device You name. can take on Krishan ji and go to the Ashok Bhai Sahab. Then we can keep finding her later if she's Okay, there. okay. Ashok Bhai Sahab ko de dijiye. Ashok ji, over to you. Okay, thank you. Hello. Sir, you are audible, sir. Am I Rajesh, start. Audible. I'm audible? Okay. Good morning. First of all of you, all the dignitaries and all my friends and all the coaches as well as fencers. Good morning and welcome to the Zoom session. I'll share my screen. I have some commitment from the SI as Colonel Jamal told. Today's I am having a vast topic to discuss, but we'll go through it quickly, and later on we can discuss anytime if you have another session anytime after these sessions. I'm gonna share my screen first. Yes, here I got. Go by. So today's my topic is it is indeed very specific as well as knowledge based. EP special techniques and advanced strategies. हमने अभी तक EP में किया था कि लास्ट सेशन था, मैंने सोचा था कि विल शेयर दीज थिंग्स. EP में स्पेशल टेक्निक्स और एडवांस स्ट्रेटेजी जो होंगी उनके लिए हम बात करेंगे. सो इन दिस टॉपिक आई कवर takings of the blade. Takings of the blade. First, let me tell you what is the taking of the blade. It is an action on the opponent's blade with aim of securing and dominating it until last phase of, मैं ऐड करूंगा इसमें, last phase of to deliver the thrust. जब तक हम thrust deliver नहीं करते हैं opponent पे, तब तक opponent के blade को हम सिक्योर करके डोमिनेट करते हैं उसको फाइनल फेज तक. इसमें कुछ टेकिंग ऑफ द ब्लेड्स हैं जो फॉइल में यूज होती हैं और कुछ स्पेशल जो हैं ईपी में हैं. इसके साथ साथ मैंने टॉपिक्स में कवर किया है ईपी की एडवांस स्ट्रेटेजीज. उसमें है व्हेन, व्हाई एंड हाउ. और मैंने हाइट डिफरेंस कवर किया है इस टॉपिक में. उसकी स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, शॉर्टर फेंसर, टॉलर फेंसर, उसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और एक डेंजर जोन दैट इज क्रिटिकल डिस्टेंस. ये बहुत सारी चीजें हैं आगे इस टॉपिक में, बट आई विल क्विकली स्टार्ट विद एंड वांट टू फिनिश द सिंपल टेकिंग ऑफ द ब्लेड. द सिंपल टेकिंग ऑफ द ब्लेड व्हिच इज यूज्ड इन फॉइल एंड épée, and especially used épée on your left. You can see these takings of the blade used in épée only, just in épée. These are double takings of the blade, compound takings of the blade, and compound double takings of the blade. And there is double compound takings of the blade. And last one also, varieties of double compound and compound taking of blades, हम उन सबको mix कर लेते हैं, वो भी है. But first I'll go through the simple taking of the blade today, and I'll let you know what is, how can we execute simple taking of the blade.
फर्स्ट इज ऑपोजिशन. मोहित सर ने पहले ऑपोजिशन के बारे में बताया है, सो आई विल क्विकली टेल यू द एक्सरसाइज ओनली फॉर द ऑपोजिशन. है क्या? कैच द ब्लेड इन अ लाइन. ऑपोजिशन इज कैच द ओपोनेंट्स ब्लेड इन अ लाइन एंड डिलीवर अ थ्रस्ट. डोमिनेट इट until final phase. So हम सेम लाइन में, एक ही लाइन में ब्लेड को पकड़ के ऑपोजिशन ब्लेड के साथ उसको थ्रस्ट करते हैं. ओपोनेंट को ये 6 to 6, 4 to 4, 7 to 7 and 8 to 8. It means 60 to 60. We catch the blade in 60 and we finish it in 60 with the blade. एंड क्वार्ट टू क्वार्ट, क्वार्ट में ब्लेड पे हम होल्ड करते हैं और क्वार्ट में ही फिनिश करते हैं. बट टेकिंग ऑफ द ब्लेड और पारी में फर्क है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा. टेकिंग ऑफ ब्लेड है, हम ब्लेड को फॉइबल से थोड़ा सा आगे और मिडल पार्ट के बीच में होल्ड करते हैं और हम फिनिश करते हैं आगे प्रोग्रेशन में. जबकि पारी रिपोस्ट में हम उसको ब्लेड को रोकते हैं और रिपोस्ट डिलीवर करते हैं. तो ये टेकिंग ऑफ ब्लेड में फर्क है. और टेकिंग ऑफ ब्लेड बहुत ही इफेक्टिव है एपे फेंसिंग में. और आज के टाइम में दिस सिनेरियो, जब से हमारा अनविलिंगनेस टू फाइट और ये रूल आया है, तब से हमारा डिस्टेंस जो है कम होता जा रहा है. और उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये टेकिंग ऑफ ब्लेड और ज्यादा इसका रोल बढ़ गया है. Second is crochet. The blade in crochet is take the opponent's blade in a high line, bring it to the corresponding low line. हम ब्लेड को पकड़ते हैं और उसकी corresponding low line में लेके आते हैं. corresponding low line कौन सी है? हमने हाई लाइन और लो लाइन देखी है. तो हाई लाइन के सामने हमारा 6 हम यहाँ पकड़ते हैं. एवरी कोच और सब फेंसर जानते हैं 6 पकड़ते हैं और उसको हम ऑक्टेव में लेके जाएं उसी ब्लेड को. वो कॉरस्पॉन्डिंग लो लाइन है. 6 to 8 इज द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन और 8 to 6 वाइस वर्सा. सिमिलरली क्वार्ट टू सेप्टिम एंड सेप्टिम टू क्वार्ट. बट क्रोजे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. क्रोजे जो है मोस्ट ऑफनली हम नहीं करते हैं. क्रोजे कैन बी एग्जीक्यूटेड इन एनी लाइन, but it's mainly used for quart to septim. quart to septim में इसको हम प्रयोग में लाते हैं. और 60 to octave, 6 से octave opposite handed fencer के साथ हम प्रयोग में लाते हैं क्रोजे. और क्रोजे में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सेम कॉरस्पॉन्डिंग लाइन में जाने के कारण क्रोजे इज रेयरली यूज्ड एज एन अटैक. दिस टाइप ऑफ टेकिंग ऑफ ब्लेड्स जो है वो ओपोनेंट का ब्लेड छूट जाता है इसमें. सो इस करके क्रोजे रेयर यूज होता है क्रोजे का. एंड वेयर एज बाइंड, नंबर 3 इज बाइंड. व्हाट इज बाइंड? आई लेट यू नो. टेक द ब्लेड इन अ हाई लाइन एंड ब्रिंग इट टू द ऑपोजिट लो लाइन. जहां क्रोजे में कॉरस्पॉन्डिंग लाइन था, यहाँ पे ऑपोजिट लो लाइन है. तो ऑपोजिट लो लाइन कौन सा होगा हमारा? ऑपोजिट लो लाइन, अगर मैंने ब्लेड पकड़ा है 6 में, ओपोनेंट का ब्लेड मैंने एंगेज किया 6 में, और 6 में एंगेज करके ब्लेड को मैं उसे सेप्टिम में ले गया राइट हैंडेड फेंसर के साथ. 6 में ब्लेड कैच किया और हेलो बाइंड में टेक द ब्लेड इन ए हाई लाइन, हम हाई लाइन में पकड़ते हैं और 6 में, और उसे सेप्टिम में ले जाते हैं 6 से. कैच द ब्लेड लाइक दिस इन 6 एंड टेक इट टू द सेप्टिम एंड डिलीवर अ थ्रस्ट. दैट इज ऑपोजिट लो लाइन में. बाइंड में टेक्स, इसका वाइस वर्सा भी हम करते हैं 6 to 7 and 7 to 6 also, whereas quart to octave and octave to
quart. These are the binds which are used in foil as well as in épée. And the envelopment. Envelopment is take the blade in one line and bring it back to the same line, और हम उसी line में उसे लेके आते हैं, bring it to the same line. जैसे 6 to 6 and septem to septem, octave to octave. So हम ब्लेड पकड़ते हैं, सर्कुलर मूवमेंट जो होती है ब्लेड की वो एनवेलपमेंट है. These 4 takings of the blade can be executed in any line. So ये मैंने इसलिए क्विक बताया क्योंकि फॉइल और ईपी दोनों में यूज होती हैं. और जहां तक एनवेलपमेंट है, एनवेलपमेंट मोस्टली ईपी में ऊपर हम सर्कुलर जो मूव करते हैं 6 to 8 में, मैक्सिमम टाइम 6 to 8 हम उसे ब्लेड को बाहर ले जाने के लिए प्रयोग में लाते हैं. सो दीज वर द सिंपल टेकिंग ऑफ द ब्लेड्स जो मैंने शुरू के हमारी स्लाइड में था. सिंपल टेकिंग ऑफ द ब्लेड, opposition, crochet, bind and envelopment. Then we have especially used the taking of the blades for épée fencing only. These are the vast topic to discuss on this. Double takings of the blade. We have compound takings of the blade, and we have double compound takings of blade, and we have compound double takings of the blade. The 4 type of the combination of the taking of the blades which are used in épée fencing especially. Then I have épée advanced strategies to discuss on this topic, and it will cover. Once referee says, this is a big question to all the fencers and for coaches also. Once referee says fence, the questions are, कौन से question होंगे? When do you attack? When should you use stop thrust? When should you parry and riposte? Timing is everything here, and timing and distance are 2 sides of the same coin. I have lots of to discuss on the when to attack. I have lots of things to tell you when to attack and when to use stop thrust, when to use parry and riposte, and there are 4 simple rules as well. जो winning stocks के लिए there are 4 simple rules. Then I have height differences and épée fencer strategies. épée फेंसर की हाइट डिफरेंस होता है, उसमें क्या स्ट्रेटेजीज होंगी. जो शॉर्टर फेंसर होगा उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, टॉलर फेंसर होगा उसकी क्या स्ट्रेटेजीज रहेगी, उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, शॉर्टर फेंसर को क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, वेयरएज टॉलर फेंसर को क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं. I have in this topic to cover the danger zone, a critical distance. This is very, very much required and need of the hours to tell to our fencers as well as I think coaches as well. I have covered here a topic like that. It will give a good benefit to all of us. हम सबको ये बहुत सारे, और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ये हमारी सोच को, ये आप ये सारे जब इकट्ठे आएंगे जो हमारे कोचेज हैं उनकी सोच को कहीं ना कहीं बदल देगा. छोटा फेंसर को जैसे कि हम फ्रेंच ग्रिप देते हैं, क्यों देते हैं, वहां वीकनेस है या कि उसकी स्ट्रेंथ है, उसको भी ये रिलेट करेगा. क्योंकि छोटे फेंसर की स्ट्रेंथ है कि छोटे वो शॉर्टर डिस्टेंस से खेले, और हम फ्रेंच ग्रिप अगर उसको देते हैं तो उसका डिस्टेंस हम बढ़ा रहे हैं और वो पैरी पे भी स्ट्रांग नहीं रहता, वेयरएज अटैक वो काउंटर अटैक टॉलर फेंसर पे कर नहीं सकता है. तो इस तरह के टॉपिक्स हैं. I'm sorry today
I have a commitment. I have to join Zoom session, Zoom meeting. It is from our DG, Director General of SAI. So for today, I'll cover this topic with all covering all aspects of this. This is one of the vast topic to discuss. Thank you, one and all. Thank you. Over to Mr. Christian Coach sir. Hello. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thanks for your nice presentation. Though you don't have you didn't get enough time to present your words, but I request Jamalji to, if we can get a slot, and we'll give you the next chance to describe all these things again. Please, it will take almost more than 1 hour. Sure, sir. We will try our level best to give you the slot for this. And as per our past practice, आज हमने एक budding fencer को invite किया है. We will not have a long question and answer sessions today because we have a Facebook live with Colonel Jamwal. So I will request everyone to join that session because this is for the fencing and you all have to see it. तो आज हमारे साथ एक बडिंग फेंसर हैं इंडिया के. हर नेम इज तनिक्षा खत्री. शी इज फ्रॉम हरियाणा और हर अचीवमेंट इज लाइक दैट. उन्होंने इज करंट नेशनल चैंपियन. सीनियर में कैडेट नेशनल चैंपियन है. जूनियर में शी कुडंट फेंस बिकॉज शी वाज इन फ्रांस. तो मेरी तनिक्षा से रिक्वेस्ट है कि पहले तो अपना वीडियो ऑन कर लें. आई विल अनम्यूट यू नाउ. तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप ये बताएं कि आप क्या देखते हैं इंडियन फेंसिंग के बारे में, कि आप फ्यूचर में क्या हम इंटरनेशनल लेवल पे किस लेवल पे हम मेडल कितनी जल्दी जीत सकते हैं. मींस इंटरनेशनल वी हैव मेडल्स बट लाइक इन मेजर कॉम्पिटिशंस हम कब मेडल जीत पाएंगे. और उसके बाद आपने इंडिया में ट्रेनिंग की और फ्रांस में ट्रेनिंग की, तो क्या डिफरेंस था, किस प्रोस्पेक्टिव से, लाइक कोचिंग प्रोस्पेक्टिव से आपको क्या डिफरेंस लगा कोचिंग में, पार्टनर्स में, और आप जो बाउट प्रैक्टिस कर रही थी उसमें क्या डिफरेंस था. 2 मिनट में आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर, जो आपने होप वाला पूछा है क्वेश्चन कि फ्यूचर होप क्या है फेंसिंग का, सर जितना सपोर्ट हमें जैसे कोचेस कर रहे हैं, फेडरेशन कर रही है, तो वो तो ज्यादा टाइम नहीं है कि हम लोग ज्यादा देर तक जैसे मतलब ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे. जैसे कोचेस इतनी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे, हमें इतना सपोर्ट करते हैं. अभी साई में उधर मैं ट्रेनिंग करती हूँ, उधर सभी कोचेस है, मोटिवेट करते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं. तो सर हम उसमें जल्दी ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर पाएंगे. और सर जो आपने ट्रेनिंग में डिफरेंस पूछा है फ्रांस की और इंडिया की में, सर वो तो जैसे अभी इंडिया में भी कैंप लगते हैं, हम अलग अलग कोचेस के पास ट्रेनिंग करने जाते हैं, तो सर हर कोच से अलग अलग चीज सीखने को मिलती है. सर वो हमारे ऊपर है कि हमारा कोच पे बिलीव होना चाहिए कि हाँ हम हर कोच से कुछ ना कुछ सीखेंगे. और सर ट्रेनिंग का डिफरेंस ये है, जैसे अभी हम लोग वहां पर फ्रांस गए थे, तो वहां पर जो ओपोनेंट्स थे सर वो जैसे वर्ल्ड लेवल के थे, जो सारा बेस्ट थी, नेथली थी, सभी अच्छे लेवल के प्लेयर्स थे. तो उनसे भी हमें अलग अलग टेक्निक सीखने को मिली. हम और ज्यादा मोटिवेट हुए कि हम इतने अच्छे लेवल के प्लेयर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें ज्यादा सीखने को मिलेगा. एक क्वेश्चन और है मेरा इसी में कि जब आपने वर्ल्ड लेवल के फेंसर्स के साथ खेला तो क्या उन्होंने कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपको बूस्ट करने के लिए, आपकी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए कोई टेक्निकल एडवाइस दी आपको उन्होंने? हाँ जी सर, जैसे हमने उनसे खुद क्वेश्चन किया कि जो हमारी मेन प्रॉब्लम होती है, सभी को यही होता है कि हम लोग प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम लोग कंपटीशन में खेलने जाते हैं तो वहां पर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. तो सर ये क्वेश्चन मैंने सारा बेस्ट से किया था कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अगर मैं ट्रेनिंग करती हूँ तो मैं मेरा 100% दे रही हूँ, लेकिन कंपटीशन में मैं अच्छा नहीं खेल पाती. तो सर उसने मुझे यही सिखाया कि कभी भी हमने अपने रिजल्ट्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हमने अपना बेस्ट देना है. हमने अगर अच्छी ट्रेनिंग की है तो हमने रिजल्ट्स का नहीं सोचना चाहिए. थैंक यू तनिक्षा फॉर एनलाइटनिंग अस. आपने जो वर्ड्स बोले मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत सच्ची बातें हैं, जो कोच पे बिलीव करना और जो उन्होंने टेक्निकल एडवाइस आपको दी कि सिर्फ रिजल्ट पे काम नहीं करना, रिजल्ट को नहीं सोचना, आपको मेहनत करनी है, आपको ट्रेनिंग पे फोकस रखना है. आप ट्रेनिंग अच्छी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा.
तो थैंक यू तनिक्षा। एंड मेरी मोहित सर के लिए भी ग्रेट थैंक्स है और अशोक सर के लिए भी, बिकॉज आज लास्ट सेशन था ईपी का, इसमें मोहित सर ने आपको आज स्पेशल एक्सरसाइजेस दिखाई, रमीज के बारे में बताया, डिफरेंट ब्लेड एक्शंस के बारे में बताया, वेयर एज अशोक सर को बहुत कम टाइम मिला पर उन्होंने काफी चीजें उसमें एनलाइट की हैं, और विल रिक्वेस्ट कि अगर हमें टाइम मिला तो हम अशोक सर को उसमें एक नया स्लॉट देने की कोशिश करेंगे। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट आज सबसे कि आप 11 बजे फेसबुक लाइव पे हमारे कर्नल विक्रम सिंह जामवाल जी लाइव होने जा रहे हैं, जिसमें फेंसिंग के बारे में बताएंगे लोगों को कि फेंसिंग क्या होती है और क्या जो चीजें हमें नहीं पता हो सकता, कुछ ऐसी चीजें भी हों उसमें। तो मेरी सारी फेंसिंग फर्टर्निटी के लोगों से, जो हम लोग यहाँ जूम पे अभी अवेलेबल हैं, जूम पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इमीडिएटली आफ्टर दिस आप लोग फेसबुक लाइव पे ज्वाइन करें और वहां पर लाइक्स दें, कमेंट्स करें और उनको हमारे इस शो को सक्सेसफुल बनाएं। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लॉग आउट एंड ज्वाइन फेसबुक लाइव। थैंक यू वेरी मच वन एंड ऑल।